Good morning, class. So, today we will be continuing with the chapter resources. In the last two sessions, we have mostly covered the chapter. Today, we will be continuing the chapter. We will be doing the last topic, conserving resources. In this chapter, we will see how we can conserve a resource. Okay, because some resources are only in earth, they are in very less amount, like non-renewable resources. So how to conserve it, or the renewable resources which are in a stock. Okay, how can we conserve it? So let's see. Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. सारा पानी धरती पे क्या? What happened to water? सूख गया है, पानी सूख गया है, and all the trees have been cutted down. There was no shade and nothing to eat or drink. कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ पीने के लिए नहीं था. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. People find कर रहे थे क्या चीज़? They were searching for different items in for food to nourish them, to nurture them. ठीक है? She told her mother about the dream. उनने अपनी मदर को ये ड्रीम बताया कि उनको क्या आया. अम्मा, can this really happen? She asked. अम्मा ने बोला कि क्या ये हो सकता है? ऐसा पूछा मोना ने. तो अम्मा ने बोला यस, हो सकता है. Of course this can happen. If we are not careful, then even renewable resource can even scarce means कम अमाउंट में हो जाएंगे अगर हम केयर नहीं करेंगे उनके बारे में. if we do, अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे. and the non-renewable ones can definitely get exhausted means ख़त्म हो जाएंगे. they will be exhausted, they will be tired up and they will be end. what can we do about it? राजू asked. अब हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए? Using resources carefully and giving them time to time renewed is called resource conservation. हम उनको टाइम टू टाइम वापस से उनको रिप्लेनिश होने के लिए टाइम दे, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उन चीज़ों को फ्यूचर के लिए यूज़ करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. उस चीज़ को फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ करना टू conserve them for future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. एक रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, वेज होते हैं. ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. हर एक इंसान उसको कम कर सकता है बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इट, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ इट. वी शुड हम उसका मास कंजम्पशन ना करें, उसका कंजम्पशन कम कर दें. जितना हम करते हैं उससे थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं. तो येस, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग मीन्स वी शुड यूज़ द 5 आवर्स. हमें क्या यूज़ करना चाहिए? 5 आवर्स. हमने पढ़ा है यार, या आपने पढ़ा होगा इन छोटी क्लास में. ठीक है. इन साइंस ऑल्सो, इन क्लास 8 साइंस, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक केमिस्ट्री लेसन 1, उसमें भी हमने 5 आवर्स के बारे में पढ़ा है. आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो. ओके, सो डोंट वरी फॉर इट. आई विल अपलोड साइंस, SST एंड इंग्लिश, and I hope maths and Hindi too. Okay, let's see. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. वो क्या है, एक डिफरेंस बनाता है क्योंकि सबकी लाइफ क्या एक लिंक्ड है, एक वे में लिंक्ड हो चुकी है. दैट इवन ये हम टेक्स्ट नहीं पढ़ते क्योंकि दिस टेक्स्ट कंटेन्स नथिंग, तो हम इसको काट देते हैं. दिस इज ऑफ नो यूज़. Here are also some text. Yes, this can happen that from these texts you can get text based questions. Okay, so when before the exam you can read it. Okay, you can check it out. Now आते हैं हम. Now let's use the future of our planet and its people is linked
with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides us. तो हमें जो नेचर ने प्रोवाइड किया है उसको हमें प्रॉपर वे में रखना है, हमें उसको ख़राब नहीं करना है. नेचर हैज़ गिवन अस फ्री आइटम्स बट वी shouldn't corrupt it, we shouldn't exploit it. Okay, therefore it is our duty to ensure that, हमारी ड्यूटी है कि हम all uses of resources are sustainable. एक सस्टेन उसमें करें कि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए बट हम उसका मास कंजम्पशन भी ना करें. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड. हमारी जो डाइवर्सिटी, हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो कंजर्व रहें, उनको कुछ ना हो, दे डोंट उनको हार्म ना पहुँचे, दे इंडेंजर्ड एनिमल्स में ना आए, एक्सटेंट ना हो जाए. द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. हमें मिनिमाइज करना है एनवायरमेंटल सिस्टम. ये जो हम पेड़ कट करते हैं, वी यूजुअली कट द ट्रीज, बर्न द प्लास्टिक्स, तो हमें वो नहीं करना चाहिए. दिस कैन रिजल्ट इन एन ग्लोबल वार्मिंग जो हो ही रही है. ठीक है. नाउ हेयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development means carefully utilizing resources so that what is happening? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मीन्स हम इतने इस वे में यूटिलाइज करें कि हमारी नीड्स भी पूरी हों बट वी आर कंजर्विंग इट फॉर फ्यूचर टू. ओके, सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ इज सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट आर सम प्रिंसिपल्स. हमारे क्या प्रिंसिपल्स है. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सारी फॉर्म ऑफ लाइफ, प्लांट, नेचर, ठीक है, इनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वी शुडंट करप्ट इट. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब ये है कि वी शुडंट लिव इन अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी. ठीक है, हमें एकदम डल नेचर में नहीं रहना चाहिए. वी शुडंट हैव द टेंडेंसी टू do a thing that is harmful for us also and environment also. What we are doing is harming us only. ठीक है, environment का कुछ नहीं है. This will harm us only. ठीक है, ये जो भी आप पेड़ काट रहे हो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है, this will harm us only, no one else. Conserve the earth's vitality and diversity. उसकी vitality, उसकी चीज़ों को conserve करो. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. डिप्लीशन उनका कम होना चाहिए. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. जैसे हम बोलते नहीं हैं कि दैट हमारे अकेले से क्या हो जाएगा अगर हम कम कर देंगे कूड़ा फेंकना इन पब्लिक. ठीक है, सो येस इट विल हैपन. अगर आप कम करोगे शायद से 2-3 लोग और कम करें, उनको देखकर और लोग कम करें. ठीक है, तो इससे दिस कैन हेल्प इन reducing the waste. Enable communities to care for their own environment. हमें क्या एक जागरूकता भी होनी चाहिए. We should have a knowledge. ठीक है, एक knowledge होनी चाहिए इसके बारे में. ठीक है, so here our chapter ends. Resources. Okay, let's do the exercise. जल्दी से take the correct options हम कर लेते हैं and और तो कुछ है नहीं. Answer the following questions. I want that you should do it and comment down the answers and I will see who has done it correct. And if you have doubt with the chapter, कोई भी डाउट है इन सारे इतने चैप्टर में से या फिर किसी भी चैप्टर में से इन SST, English or any subject in class 8, you can ask me in the comment section. Let's do the correct option. Which of the following
डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, इनमें से क्या चीज़ है जो एक रिसोर्स को सब्सटेंस नहीं बनाती है, मीन्स नहीं बनाती. तो दिस मीन्स क्वालिटी. वैल्यू एंड यूटिलिटी मेक्स रिसोर्स. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर ये नेचर ने नहीं बनाया, दिस इज मेड बाय आर टेक्नोलॉजी बाय साइंटिस्ट. Complete the statement. Non-renewable resources are those which have limited stock. Non-renewable resources are those which have limited stock made by human beings derived from non-living things. Those which have limited stock is the answer. Okay. Now I want one more thing by you, that activity. You should do the activity and for fun. रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोटी मनुष्य चून. So you should do it for fun. This is only for you. So here our chapter ends and my video also. Please subscribe to my channel and like it. If you have any doubt related to geography for this chapter, you can ask me in comments, and I want you to answer the questions in the comment down below, and I will check who has really read the chapter. I will leave some questions also down below, so you can do it. Okay. And in the next class we will be in the next video I will be telling you about human resources. Okay. Because we should go in a chronological order, not by the बुक के ऑर्डर में. अगर हम बुक के ऑर्डर में चलने लग गए तो दैट विल नॉट हेल्प अस इन एनी वे, क्योंकि सीधे रिसोर्स के बाद ह्यूमन रिसोर्स हम करेंगे तो दैट विल हेल्प अस ओनली. ओके. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी सीइंग, in the next video we will be knowing about human resources. Okay. So thank you class, thank you.